Hello everyone, welcome to Manav Education, Jai Hind. In this particular video, we will discuss about GK and current affairs, most expected questions regarding MH Law CET 3 or 5 years. Okay. So as you know, this is a fourth part of this particular video series. We have discussed first, second and third part. If you forgetting to watch it out, so please watch it out. Link is available in the description. And if you are the new family member of this particular Manav Education, so please subscribe our channel in the YouTube for the future and for the notifications. Okay, so let us start with one by one. As you know, we have a very less time to prepare the GK and current affairs section regarding MH Law CET for 3 and 5 years. Okay, so you required a proper plan, you required a proper last moment strategy, you required a proper material. So if you are preparing for the MH Law CET 3 or 5 years, CLAT, SLAT, AILET, BHU Law, LSAT, others, and if you are targeting to top law colleges, so don't worry, batches launched by the Manav Education, okay, where you can get the live classroom coaching, ebook, shortcut trick for the time reduction management, doubt solving session, recorded videos for the future reference, topic wise test, mock test, WhatsApp group for the where you can solve your query with the help of the faculty members, and you can also get the 10,000 plus questions and mentorship program. And if you are looking for the classroom coaching at the Mumbai, so we have 3 centers, Dadar, Borivali and the Vasai. So you can visit our center also, and you can also visit our website, which is called the manaveredu.com/law entrance. After the completion of this particular question, we will also visit this particular Manav portal, and we will also observe that which kind of benefit you can get from this particular portal. So what are you waiting for, guys? Book your seat now on 8828581455. Let us start with the first question. The latest version of Consumer Protection Act was passed in which of the following year? If we talk about this particular year, so in this particular year, Consumer Protection Act was passed. Okay, so you have to give the answer regarding this particular year. So let us discuss about the correct answer. So correct answer is the 2019. Let us discuss about the description. The Union government in exercise of the powers conferred by the Consumer Protection Act 2019 has notified the Consumer Protection and Direct Selling Rules 2021. Okay, so as per the new rules, we can say that direct selling entity and the direct sellers are prohibited from promoting a pyramid scheme or enroll any person to such scheme or participate in such arrangement. Is it clear? So they are also prohibited from the participating in money circulation scheme in the name of the directing selling business. ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 में पास किया गया था, ये आपका सही आंसर रहेगा. Let us discuss about the next question. Blue Book, which was seen in the news, is the manual of which armed force oblique group? Okay, so there are the 4 options over here. If we talk about the correct answer, so correct answer is the Special Protection Group. Let us discuss about the description. Blue Book जो एक डायरी होती है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री साहब हैं हमारे नरेंद्र मोदी सर, उसकी जो एक प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, सो दैट इज कॉल्ड द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. उसके पास एक मैनुअल होती है, सो दैट इज कॉल्ड द ब्लू बुक. इज इट क्लियर? सो क्या होती है एसपीजी की ब्लू बुक डायरी? Blue Book is the name of the manual of the Special Protection Group, which exclusively protects the India's Prime Minister. Okay, Indian Prime Minister Narendra Modi spent 20 minutes on a Punjab highway blocked by protesting farmers in a security breach. ठीक है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि थोड़ी बहुत जो सिक्योरिटी की ग्लिचिंग थी, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर 20 मिनट तक हमारे नरेंद्र मोदी साहब को एक हाईवे के ऊपर रुकना पड़ा था. तो यहाँ पर आप जो कमांडोज देख सकते हैं वो एसपीजी कमांडोज है, जिसके पास एक मैनुअल होती है. सो दे हैज अ ब्लू बुक मैनुअल. इज इट क्लियर? सो उसको ही बोला जाता है ब्लू बुक. इज इट क्लियर? सो यूजुअली द पीएम्स प्लान इज शेयर्ड विद द स्टेट्स टॉप लीडरशिप इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड द पुलिस चीफ. इज इट क्लियर? So Special Protection Group coordinates with the state police and other officers for a security plan. So you required a particular blue book diary. Is it clear? So they has a blue book regarding the SPG. So correct answer is the option number B. Let us discuss about the next question. The subsidiary of which Indian company signed agreements on jointly developing the Trincomalee oil tank farm? So if we talk about the correct answer, so correct answer is the Indian Oil Corporation. Let us discuss about the description.
Lanka, it stands for Sri Lanka, Indian Oil Corporation, Ceylon Petroleum Corporation, and the government of Sri Lanka signed lease agreements on jointly developing the Trikomali oil tank farm. Is it clear? So Indian Oil Corporation subsidiary Lanka IOC is set up to run the 14 oil storage tanks, while CPC would run 24 tanks. Is it clear? So this particular Trinco Petroleum Terminal Private Limited would develop the remaining 61 tanks. Is it clear? So in a joint venture where 51 stakes will be held by CPC. CPC stands for what? Ceylon Petroleum Corporation. Is it clear? So it stands for the CPC. So 51 stakes will be held by the CPC and 49% by the Lanka Indian Oil Corporation. Is it clear? So correct answer is the option number A, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन. जब भी श्रीलंका का जब भी क्राइसिस चल रहा था तभी हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था श्रीलंका के साथ जो यही टैंक फार्म के बारे में बात करता है. ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पूछा जा सकता है. क्यों? क्योंकि श्रीलंका का इकोनॉमिकल क्राइसिस अभी भी चल ही रहा है. इज इट क्लियर? लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. Which group of countries participate in Sea Dragon 2022 military exercise? So if we talk about the correct answer, so correct answer is the Indo-Pacific countries. Let us discuss about the description. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, so Sea Dragon 2022 था, उसको अनाउंस किया गया था यूएस नेवी के थ्रू, और ये एक्सरसाइज 6 कंट्री के बीच में होगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया. और ये एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कि पैसिफिक ओशन में होगी, और इसके अंदर भारत और पैसिफिक रीजन के यानी कि इंडो पैसिफिक ओशनिक नेशंस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, और अगर मैं क्वाड कंट्री की बात करूं तो क्वाड कंट्री में कितने मेंबर है दोस्तों? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका. ठीक है, और उनकी जो एक्सरसाइज होती है उसको बोला जाता है मालाबार एक्सरसाइज. तो दोनों में थोड़ा डिफरेंशिएट करिएगा एंड गलती मत करिएगा. ठीक है, सो इंडो पैसिफिक कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड साउथ कोरिया. एंड इफ यू टॉक अबाउट द क्वाड, सो क्वाड मेंबर कौन कौन से हैं? 4 मेंबर है क्वाड के, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका. ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country recently launched formal free trade agreement negotiations with India? सबसे पहले मैं बता दूं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है. एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक ट्रेडिंग एग्रीमेंट करती है जहां के उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, टैरिफ लगाए जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैरिफ लगाए जाते हैं, उसको नील कर दिया जाता है या तो रिड्यूस कर दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, तो भारत ने किसके साथ यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट किया है? सो करेक्ट आंसर इज द यूनाइटेड किंगडम. लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन. सो विद इन एन एम ऑफ डबलिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम बाय 2030 द कंट्रीज लॉन्च्ड फॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इट स्टैंड्स फॉर द FTA नेगोशिएशंस. बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इज वर्थ अबाउट $50 बिलियन पर ईयर. हाँ दोस्तों, $50 बिलियन तक का यहां पर वर्थ अमाउंट डिस्कस किया गया है. कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सेड बोथ कंट्रीज हैड एग्रीड टू सेंसिटिव सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, जो इकोनॉमी के अंदर आपका प्राइमरी सेक्टर है, एंड सेकंड वन इज द डेयरी सेक्टर. इज इट क्लियर? एज पर द WTO, preferential terms can be given if they have bilateral agreements that cover all kind of the particular trade. ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम. लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian state constituted the Justice Hema Commission? So if we talk about the correct answer, so correct answer is the Kerala. Let us discuss about the description. In 2017, the government of the Kerala formed a 3-member commission headed by the Justice K. Hema, जो कि रिटायर हो चुके हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट के बी वालसला कुमारी एंड वेटरन एक्ट्रेस श्रद्धा एज अ मेंबर. ठीक है, तो ये जो कमीशन था ये फॉर्म हुआ था टू स्क्रूटिनाइज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वुमेन इन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, एंड द गवर्नमेंट इन केरला रिसेंटली फॉर्म्ड अ 3-member पैनल टू स्टडी एंड वर्क आउट अ प्लान टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द जस्टिस हेमा कमीशन रिपोर्ट. ठीक है, तो ये जो हेमा कमीशन रिपोर्ट है या जस्टिस हेमा कमीशन की जो पूरी की पूरी एनालिसिस है वो किस गवर्नमेंट के थ्रू एसोसिएट है? केरला गवर्नमेंट के थ्रू. इज इट क्लियर? तो लॉ की एग्जामिनेशन के हिसाब से ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो ये एक याद रखिएगा. ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Aisha Malik become the first ever woman judge of the Supreme Court of which of the following country? ठीक है जी हाँ, ये क्वेश्चन भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। एज पर द लॉ एग्जामिनेशन की जो एक आयशा मलिक कर कर एक मोहतरमा है, वो पहली वुमन जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, पर कौन से कंट्री के सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है ये आपको यहां पर बताना है। सो देयर आर द 4 ऑप्शंस ओवर हियर। इफ वी टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर, सो करेक्ट आंसर इज द पाकिस्तान। यहां पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। हाई कोर्ट जस्टिस आयशा मलिक हैज बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान फर्स्ट एवर वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, आयशा ए मलिक, यहां पर आप उसका फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी gave his approval to the elevation of the judge who was serving as a Lahore High Court justice since 2012. She will now work as a Supreme Court judge until her superannuation in June 2031. So यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक भी, आयशा मलिक फर्स्ट एवर फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country is the host of the 2022 Winter Olympics? Guys, ये हम लोगों ने लेक्चर में भी पढ़ा था। If we talk about the correct answer, so correct answer is the China. यहाँ पर सबसे पहले याद रखें, बेजिंग चाइना 2022 के अंदर विंटर ओलंपिक्स होने वाला है। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा। So officially scheduled in the Beijing, China. Okay, scheduled to take place from 4th to 20 Feb 2022 in Beijing and its neighboring town in the China. तो ये आप लोगों को पूछा जा सकता है कहां पर हुआ था। ठीक है, सो अ रिपोर्ट रिलीज बाय स्पोर्ट इकोलॉजिकल ग्रुप एंड सेव आवर विंटर्स हैव स्टेटेड द डेंजर्स ऑफ आर्टिफिशियल स्नो टू बी प्रोड्यूस इन द ओलंपिक्स ऑन एथलीट्स बॉडीज। इज इट क्लियर? सो इट वाज वॉर्न ऑन वाटर वेस्टेज दैट हैपेंस ऑफ फॉर द स्नो एट दिस पर्टिकुलर गेम्स। इज इट क्लियर? सो विंटर ओलंपिक्स रिगार्डिंग द 2022 कंट्री कौन सा होगा? चाइना। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the theme declared for the DRDO Day 2022? So can you tell me guys, what is the full form of the DRDO? Okay, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, what is the full form of the DRDO? Okay, let us discuss the full form firstly. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन डे 2021, उसकी बात हो रही है, उसकी थीम की बात हो रही है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज द एक्सपोर्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्शन। DRDO observed the 63rd Foundation Day on its establishment on Jan 1st 2021. So DRDO was established in 1958 with 10 laboratories to enhance the research work in defense sector. Okay, at present DRDO is working with several areas including aeronautics, combat vehicles, electronics, instrumentation, advanced computing, simulation among others. Okay, so ये जो चेयरपर्सन है DRDO के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस साल जो 2021 की जो थीम थी वो कौन सी रहेगी? एक्सपोर्ट की थीम रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो पहले हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट मंगवाते थे, ठीक है, और हमारे जो भारत का पैसा बाहर जाता था, अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बैन कर रखी है, इंपोर्ट में हम लोगों ने बैन किया है। ठीक है, तो हम लोग अपने ही जगह पर डिफेंस इक्विपमेंट बनाएंगे और दूसरे लोगों को बेचेंगे और इंडियन रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, सो दैट इज अ पर्टिकुलर थीम रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट, जहां पर रशिया हमारी काफी हद तक हेल्प करेगा। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्ति क्रिमिनल लॉज बिल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लॉ एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा बताइए वीडियो पॉज कर। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज द महाराष्ट्र। याद रखिएगा, Maharashtra government tabled a report with recommendations of a joint selection committee to amend the Shakti bill. Okay, so the Maharashtra government Shakti criminal laws, that is a Maharashtra amendment bill जो 2020 में पास हुआ था. So that is a proposed to increase the punishment for offenses such as rape. ठीक है, अगर कोई रेप होता है या कोई एसिड अटैक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको काफ़ी हद तक ऑफेंस के कैटेगरी में माना जा सकता है और उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि विच काइंड ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, कौन सा ऐसा आईपीसी सेक्शन है जो रेप को डिक्लेयर करता है या रेप से डिनोट करता है, ठीक है, या रेप की कैटेगरी के अंदर आता है। ये आप लोगों को मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना
बताना है. आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई गाइज. ओके, इट ऑल्सो proposes the capital heavy fines and speedy trials for the perpetrator. Okay, so correct answer is the महाराष्ट्र. तो ये एक याद रखिएगा, काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो MH लोग CET के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है. ठीक है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के अंदर ही पास हुआ है. ओके, सो लेट अस विजिट दिस पर्टिकुलर website. If you go through this particular web portal and type the manaveredu.com, so you can see this particular web page. After you have to go to buy online. तो यहाँ पर buy online आप लोगों को दिखा होगा, वहाँ पर जाइए, लो एंट्रेंस में जाइए. Whenever you go at the low entrance, so you can see this particular web page. यहाँ पर आप लोगों को full course program, book study material program, mock test program, sectional courses, combo courses and live classroom courses. And one honestly guys, I want to tell you that whenever you have a very less time to prepare any kind of the particular examination, so you have to give the mock test at the last moment. Okay, so यहाँ पर आप लोग mock test program को देख सकते हैं. लॉ एंट्रेंस के लिए यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट है. अगर किसी को क्वांट में दिक्कत है या लॉजिक में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है या जीके में है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी दिस ओवर हियर. MS Law CET 3 years 2022. यहाँ पर सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 5 जंबल मॉक टेस्ट अवेलेबल है. सो यू कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इफ यू टॉक अबाउट द MS Law CET 5 years 2022, आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स या कलीग्स या फ्रेंड सर्कल या आप खुद ही, ठीक है, 2022 या 2023 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर आप उसका प्रोग्राम एनरोल कर उसका बेनिफिट ले सकते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट program guys. That is also available regarding the CLAT examination, SLAT examination. If we go through the full course, अगर आपको full course के बारे में जानना है and if you want to take the benefit from this one, so you can also take the benefit from that regarding the CLAT 2022 full program, जहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, पास्ट पेपर मिलेंगे और हैंडआउट्स भी मिलेंगे. इज इट क्लियर? इफ यू वॉच इट आउट रिगार्डिंग MS Law CET 5 years 2022, तो यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और हैंडआउट्स के बेनिफिट मिल सकते हैं इफ यू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल रिगार्डिंग द MS Law CET 3 years 5 years 2022 as well as 2023, and you can also see this kind of the particular program regarding the SLAT and MS Law CET 3 years 2023, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और हैंडआउट्स के आप बेनिफिट ले सकते हैं. आफ्टर दैट इफ यू फील दैट यू आर लैक इन पर्टिकुलर सेक्शन, इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं कि कोई भी एक पर्सन है जो इंग्लिश सेक्शन में सपोज उसका वीकनेस है, इंग्लिश सेक्शन ही वीक है उसका, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेक्शन के अंदर वो प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकता है जहां पर उसका इंग्लिश एनहांस हो सकता है. इज इट क्लियर? एंड टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इज इट क्लियर? इफ यू फील दैट योर लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी वीक, सो यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल लॉजिकल रीजनिंग प्रोग्राम एंड टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. इज इट क्लियर? सो लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप एनरोल हो सकते हैं, इंग्लिश के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, जीके एंड करंट अफेयर्स की आपको पूरी के पूरी सीरीज मिलेगी. ठीक है, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, क्वांट, वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है. एंड जस्ट डू इट वन थिंग, एनरोल द पर्टिकुलर प्रोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू योर रिक्वायरमेंट एंड टेक द बेनिफिट एंड क्लियर द एग्जाम. इज इट क्लियर गाइज? ओके, सो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट थिंग. So that's it for this particular 10 questions. Okay, if you are preparing for the low entrance regarding 2022 and 23, so don't worry, batches launched by the Manaver Education where you can get the live classroom coaching, books, mock test, interview tips and mentorship program. Okay, so guys, जो भी आप लोग या आपके फैमिली मेंबर्स या आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स 2022 या 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं लो एंट्रेंस के लिए, तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर बताया गया है, तो आप उसको recommend कर सकते हैं. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द ऑनलाइन एंड लाइव क्लासरूम कोचिंग, सो जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन 8828581455/54. and if you are looking for classroom coaching at the Mumbai, so we have 3 centers, Borivali, Vasai and the Dadar, so you can visit our center also, and you can also visit our website which is called the manaveredu.com. and guys, if you are the new family member of the Manaver Education, so please subscribe our channel in the YouTube where you can get the further notification for the future reference
friends. So thank you once again. We will meet in the next session, and we will also make it the different kind of the particular part till your low entrance examination, okay, 2022. Okay, so let us discuss after that one. Okay, so if you are forgetting to watch part 1, 2 and 3, so please watch it out, and link is available in the description. So thank you once again. Jai Hind.